Good morning. Hope you might be doing well at home. In cash flow statement, today we are going to discuss from cash flow from operating activity. You will find a question like this, that Ratan Limited made a profit of this. So means to say profit is already given in the question. Then depreciation, amortization of goodwill, loss on sale of fixed tangible assets, provision for doubtful debts, gain on sale of fixed tangible assets, and you will find additional information. Here in this additional information, you have got some assets, current assets and current liabilities. And here it is written, calculate the amount of cash flow from operating activity from the above. Now, as I discuss this format, calculation of cash flow from operating activity. According to format, the very first what we write, profit before tax, which is already given in the beginning of the question. It's 3 lakh. So we just copy down here, profit before tax is 3 lakh. Now, adjustment for non-cash and non-operating items. Here these all adjustments are given. Depreciation is a non-operating item. We add it. Amortization of goodwill, non-operating item, we add it. Loss on sale of fixed tangible assets, we add it. It's a non-cash item, non-operating item. Provision for doubtful debts, it's also a non-operating items. You may learn it through the performer. So these 4 items we add in this profit. And gain on sale of fixed tangible assets. It's a non-operating income. And I told you that non-operating income we subtract. So now please see the format. Here we add depreciation, goodwill, loss on sale and provision. These 4 items we just add in this net profit. And the gain on sale, as I told you just now, we subtract. This bracket means minus value. So we have got 4,50,000. This is our operating profit before working capital changes. Means सबसे पहले हमने प्रॉफिट लिया, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है. उसके बाद जो ये 4 आइटम हमने फॉर्मेट के हिसाब से याद कर रखे हैं, सिंपली हमें लिखकर इन्हें ऐड करना है और उसमें से नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करना है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. Now what we do? We add decrease in current assets, increase in current liabilities, and we less increase in current assets and decrease in current liabilities. इन सब आइटम्स को बच्चों जो दे रखे हैं, हमें सिंपल, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा करंट ईयर है. इन्वेंट्री क्या होती है? गुड एसेट्स. 30,000 30,000, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ, ये नहीं आएगा. ट्रेड रिसीवेबल 36,000 40,000, इंक्रीज हो रहा है कितने का? 4,000 का. तो देखिए, करंट एसेट्स अगर इंक्रीज होती हैं तो किस में आती हैं? लेस में. दोबारा देखिए, करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल कितना इंक्रीज हुआ था? 4,000. तो हमने यहाँ पर लिख दिया इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 4,000. ब्रैकेट मीन्स माइनस, ये लेस का आइटम है. नेक्स्ट इज ट्रेड पेबल्स. हियर इट इज 54,000 78,000. हमने कंपेयर किया, क्या हो रहा है बच्चों? ये इंक्रीज हो रहा है. और ट्रेड पेबल्स हमारी क्या होती है? वेरी गुड, लायबिलिटी होती है. तो करंट लायबिलिटी, देखिए यहाँ क्या लिखा है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. ध्यान से देखिएगा दोबारा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी. तो यहाँ पर ये क्या हो रही थी बच्चों? इंक्रीज हो रही थी 54,000 की 78,000. इसलिए व्हाट वी हैव डन ओवर हियर. क्लियर?
सो अगेन एक बार मैं कन्फ्यूज़न ना हो दोबारा बता दूं आपको, इन्वेंट्री ना इंक्रीज़ हुआ ना डिक्रीज़ हुआ, ये नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल 4000 इंक्रीज़ हो रहा है, और इंक्रीज इन करंट एसेट किस में आता है, लेस में। ट्रेड पेबल ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये हमारी करंट लायबिलिटी है। शायद पिछले अभी कुछ देर पहले मैं कंफ्यूज हो गए होंगे आप, उसको ठीक कर लीजिए कि ट्रेड पेबल क्योंकि लायबिलिटी है ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम इसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ ऐड में ट्रेड पेबल 24,000, क्योंकि इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी किस में आता है, ऐड में। प्लीज़ करेक्ट इट। इन द सेम मैनर एक्सपेंसेस पेबल, ये भी क्या हो रहे हैं बच्चों, डिक्रीज हो रहे हैं। लायबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब हमने क्या लिखा था, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यहाँ पर एक्सपेंसेस पेबल। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, हमारी एसेट्स होती हैं, इट इज़ 600, इट इज़ 900, तो ज़्यादा हो रही हैं। अगर एसेट ज़्यादा हो रही हैं तो हमने क्या सीखा था, इंक्रीज इन करंट एसेट्स किस में आता है, लेस में। यहाँ लिखा प्रीपेड एक्सपेंसेस 300। तो इसको एक बार हम दोबारा फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं करंट एसेट्स में और करंट लायबिलिटीज़ में। इसको एक बार जब आप फोकस करेंगे कि डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़ हम किस में लेंगे, ऐड में। सिर्फ कंपेयर करेंगे यहाँ पर, और इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कंसंट्रेट वेदर। देखिए इन्वेंट्री ना कम हुई ना ज़्यादा हुई, तो इसका हमने कोई ऑपरेशन नहीं किया। ट्रेड रिसीवेबल ज़्यादा हो रहे हैं, एसेट्स होते हैं, और जब एसेट ज़्यादा होती हैं तो लेस में जाती हैं। ट्रेड पेबल्स ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा तो ये भी हो रहे हैं, लेकिन ये क्या है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ज़्यादा होती है तो कहाँ जाती है, ऐड में। तो इसको एक बार दोबारा आप फोकस करें। आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, जिससे कि ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाए। थैंक यू।